So in the yesterday's lecture, sorry, in the last lecture, actually, we have seen what exactly is the who ID and what ID. Now we are going to start with the new concept. Actually, we have finished with the workflows, right? We have finished, and I'm going to start the new thing called as process builder. So process builder is actually, process builder is also same like the workflow. It is also a kind of business automation tool, but it's far more advanced as compared to the workflows. And you are also going to realize this when we start discussing the different operations that we can achieve with the process builder. So you yourself will going to realize ki, yes, workflows में से जो नहीं हो सकता, that is also we can achieve with the process builder. And workflows are not being updated anymore by the Salesforce. Let me tell you that. Actually, workflow is something which is past. Salesforce has stopped doing anything on the workflows. Rather, they are actually upgrading the process builder. So workflow is something which has not been removed because still there are so many systems where certain process are, certain automations are there in the workflows. And this is the reason why Salesforce actually has not removing the workflow. But then we can assume and we can think that there will be a time come when probably Salesforce will remove the workflows and the entire business automation part will be carried out with the process builder. It might happen. It might happen that we can forecast this that probably after 5 to 10 years, Salesforce will completely remove the workflows and the entire business automation part is being covered by the process builder. Because workflows have very limited number of the operation. We have learned this. With the workflows, we can actually perform only 4 different types of operations. That means 4 different types of actions that is a workflow can be done. And that are, you can send the email and then, you can send the outbound messages. Then you can probably update a field and then you can assign a new task to any user. That is, it's limited to the 4 operation only. So these are the only 4 operations that we can automate with the workflows. But then there are far more operations that actually requires to be get automated. तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि CRM में these are the only 4 operations that requires to be automated. Obviously, there are so many operations that needs to be done without any manual interference. So that is being something achieved with the help of process builder. So process builder is also same. It is when we talk about the definition, so definition could be probably same. Workflows are the business automation tools, and using the workflows, we can certainly automate and a few of the business processes, like we can send the emails automatically, we can assign a task automatically, we can update a field automatically, and then we can send the outbound messages. That is what. Even with the help of process builder, you can achieve the same functionalities. You can send the email alerts, you can update the fields, and the sending of the outbound messages is also not here because Salesforce have identified this. Salesforce has identified this that the sending of the outbound messages. The things related to integration, they are more feasible. They are more feasible with the REST API rather of the SOAP. And instead of using the XML, actually use of JSON is more feasible because JSON is very, very lightweighted. And you are going to learn this when we start the integration. You will learn the differences between the XML and the REST API, and the differences between the JSONs and JSON and the XML. Difference between SOAP and REST. That is what you are going to see. तो अभी तो ठीक है, अभी नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट आप मुझसे इसको सुन के ये मान सकते हैं कि yes, instead of using XML, we should use JSON. Instead of using SOAP, we should use REST API, RESTful API, right? So sending of the outbound messages, that was an old technology. And it makes the uses of XML. Moreover, it makes the use of SOAP API. And nowadays, let me tell you, the entire integration part, whenever we require the integrate, whenever we require to integrate the Salesforce with some another third-party application, actually in the 90% of the applications, they run on this REST and they exchange the JSON formats. That is why sending of the outbound messages is quite outdated thing. And
Probably nowhere I think it has been used. Okay. So we simply now assume that workflows are something which is actually a past technology, and Salesforce has stopped doing anything related to the workflows. Now they are actually upgrading the process builder, and they are adding some new things to the process builder, but then they are not doing anything with the workflows. So yes, both are same in terms of the operation. They are same, that whatever what we say about the workflows, the same thing we could also tell about the process builder. And we can say that the process builder and the workflows, both of them are the kind of business automation, and we can certainly automate few of the process, we can certainly automate them with the help of process builder and even with the help of workflows. So why we are learning workflows? The uh, reason is that, first of all, there are still few you could be probably use workflow. I mean, you could probably use workflow because there could be some existing projects, there could be some existing applications where the business automation process has been written on the work. And this is the reason why Salesforce is also not removing this. अगर अगर उसको करना भी है ना, तो probably उसको अगर if the Salesforce has decided this to replace the workflows with the process builder, मुझे ऐसा लगता है कि Salesforce कम से कम 1 साल 1.5 साल का वक्त भी देगा, so that engineers like us, developers and the administrators like us, they will convert the entire application from the workflows to the process builder. तो जब भी ये होगा, ये काफी बड़ा चेंज होगा Salesforce के अंदर, कि they will remove entire workflow concept, and they will ask you to convert it from whatever you have designed on the workflow. They will ask you to convert it and migrate the same thing from the workflows to the process builder. तो ये हो सकता है आने वाले वक्त में आप और मैं ये देखने वाले हैं probably. ठीक है, चलिए आइए प्रोसेस बिल्डर की तरफ चलते हैं. प्रोसेस बिल्डर इज फार मोर एडवांस as compared to the workflows. It is having more options in terms of the action. Like action, there were only 4 actions. Here, it's almost 8 to 12 actions, and it's these things are actually being going on. Actually, Salesforce is adding something new. After every 2 to 3 release, we probably came to know that something new has been added. So yes, of course, there are more number of actions that you can achieve with the process builder, and the kind of flexibility is also there. We are going to discuss few things, and comparatively, you are going to understand how process builder is advantageous as compared to the workflow. So step by step, you are going to learn this also. So let me start with this first. See. Some theory I have written. Just you can go with the same theory. I actually don't like to read the sentence and then explain. मैं generally ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ. This is for you. This is for not me. I have my own style of explaining something. So what are the different actions? Actually, I have written 8 actions, but there are few more actions are there. When we actually start with the practicals, you are going to see that apart from these 8 actions, yes, process builder do have 3 to 4 new options over there. So yes, we can send the emails, like we can send it in the workflows. We can also send it in the process builder. Also, we can, using the process builder, we can also send the emails, like, and using the workflows, we can update a record. Here also we can update a record. See, creating of the record, that was not there in the workflow. If you remember, using the workflow, what we can do, and we can only update the existing record, but then we cannot create a record inside any object. Like we can, but in the process builder, this is an option. You are going to solve this. I'm going to take this because it's a new thing, right? It's a new, and you have not learned. Although I started with this email alert and updating a feed, and then I will take this as an example, how to create the record. This is also I'm going to solve. So using the process builder, एक important thing थोड़ा सा मुझे याद आई है. Actually, you need to write down the difference between the workflows and the process builder, because it has been asked in the interviews also. And let me tell you this. अभी मैं कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा आपको. In my mocks, see, I usually told everyone. No,
Okay, this one is an interview question. This one is an interview question. People usually ignore this. Now let me show you something. मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ guys आप. I recently have started mocks चल रहे हैं मेरे, so this is a continuous process. Almost in every weekend, almost in every weekend we actually take this mock. So I used to write down the questions over here also. And who take the mock वो भी मैं आपको बताता हूँ. So what were the questions these people actually take the L1 and L2 interview, actual L1 and interview they take it. See what they ask. What is a multi-tenant architecture? This was actually asked to one of my candidates. Sohail was taking the interviews from the mind. He was taking this interview. He asked this question: what is a multi-tenant architecture? And to my surprise, she was not able to answer this. I was shocked. Now you just see the questions. What is a multi-tenant architecture? What is a type of the tabs? What are the types of objects? Custom object and standard object. And the difference between this lookup and the master detail relationship. I told her. These were the questions that are into your set. I have already given this. What are the different ways to make a field mandatory? It has also been done, But people don't answer this. I don't know what is wrong with these guys when they are preparing for the interview. So I told one of my candidate, Nilesh, to create a difference like this. This I'm going to share with you guys also, and I'm going to share it with you guys also. How you actually should prepare the difference between lookup and master. So I told him to create it like this. मैं phone पे बात कर रहा था तो मैंने कहा एक काम करो नीलेश, just make 4 columns, and this is the way you should answer it in the interview. This should be the way. Guys, just a second. So this should be the way to answer. So how I told her. So I told her to make the first column to be the criteria. Then these are the two, lookup and the master and your justification. So I told him to create a table like this. And I was telling you, okay, the criteria is cascade delete. Like lookup does not have the cascade, master details support the cascade. Now you need to justify your point. What does this cascade delete means? So inside the lookup, when we delete the parent, only the parent record is deleted. It's not going to affect anything, the child. But inside the master detail, this was the thing. I just wanted to tell you that everything I almost tell to every batch, almost I tell everything. But people won't take it seriously. And this is the same question what they are going to face in the interview. And they realize that. तो मॉक इस होते इसीलिए ही है जस्ट टू टेल यू कि आप क्या भूल चुके हो, आपको क्या पता है. So creating a record is something which is not possible with the workflows. So when I told you to write down the differences between process builder and the workflows. Several point I am going to discuss here itself. मैं कुछ चीजें यही बता दूं. कुछ चीजें आप गूगल करिए. Try to make as concrete document as possible. It is going to help you out. आपको ही मदद मिलेगी. तो प्लीज थोड़ा सा ना सीरियसली लो. अभी क्या मॉक्स में काफी सारी चीजें देखने में आती है ऑब्जर्वेशन में. काफी अफसोस होता है इस चीज को दिन. ये चीजें जो बताई हुई है और काफी स्ट्रेस देके बताई हुई है, बावजूद इसके काफी लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं. देखिए मैं ये सारी चीजें क्यों शेयर करता हूँ, ताकि क्या एक की गलती दूसरे के लिए सबक बन सके, है ना. तो ये जरूरी है आप लोगों के साथ भी ये चीजें डिस्कशन करना, बिकॉज आप सभी एक ही फेज में हो, राइट. और कुछ दिनों बाद आप में से जिनका भी ये कंप्लीट होके सर्टिफिकेशन होता है और आप ग्रुप में ऐड होने वाले हो, तो आपको एक पता होना चाहिए कि किस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, राइट. सो क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड वाज नॉट देयर इन दी वर्कफ्लोस. Creating a record option, this option is with the process builder. So with the process builder is that much powerful. Now come to the justification part. अगेन है ना, मैं 4 कॉलम्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. देखिए पहला कॉलम क्या है आपका क्राइटेरिया, दूसरा कॉलम है वर्कफ्लो, तीसरा कॉलम है प्रोसेस बिल्डर, चौथा कॉलम है जस्टिफिकेशन. व्हेनेवर वी आर टेलिंग एनी डिफरेंसेस, जब भी हम कभी भी डिफरेंस की बात करेंगे इंटरव्यू में, हमेशा इस 4 कॉलम की बात करेंगे. आपका विजुअलाइजेशन ये 4 कॉलम रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टेल द क्राइटेरिया, उसके बाद वो कहाँ है और कहाँ नहीं है, एंड फाइनली द जस्टिफिकेशन. सो क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड, दिस इज योर क्राइटेरिया. Creating a record option, there is no option to create the record in the workflow, second column. Using the process builder, yes, you can create a record inside any object, third column. So fourth column, justification, process builder is that much advanced. Process builder is that much powerful.
that using a process builder, we can create a record inside any object. It could be any standard, it could be any custom object. I was shocked when he asked what are the different types of object, and probably उसने आंसर नहीं दिया. I was shocked. There are only two types of objects, standard and the custom. होता है, नर्वसनेस से भी होता है, आई एक्सेप्ट दिस, नर्वसनेस से भी होता है, और इसीलिए तो मॉक लिए जाते हैं, ताकि आपकी सारी, आपके अंदर की सारी नर्वसनेस, आपके सारे रेक्टिफिकेशंस हम करवा के देते हैं, सो दैट एक्चुअल इंटरव्यूज और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए. सो यस, मैं सारी चीजें एक्सेप्ट करता हूँ, आपकी सारी गलतियां एक्सेप्टेड है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी के सुधार के लिए हम मॉक लेते हैं, ठीक है. तो चलो, इस तरह से जब भी डिफरेंस बनाए ना, ट्राई टू मेक इट लाइक दिस, और ये मैं शेयर कर दूंगा आपको जो दिखाया था. Then yes, we are going to work on this, how to create a record using the process builder. Yes, you can do that. आप कर सकते हैं, ईमेल अलर्ट भेज सकते हैं. अपडेटिंग अ रिकॉर्ड के बारे में आपने पढ़ा है कि in the workflows also and in the process builder this point is same, but then process builder even provide you some of the new functionalities. So you, in the same object you can update the record in the cross object field update action. ये हमने वहां पढ़ रखा है. Now, can anyone tell me this? Can anyone tell me this? What was the few considerations, or rather what was the few restriction in the workflows when I perform the cross object field update action? Can anyone tell me this? Can anyone tell me this? Sir, both object should be associated with master detail relationship. Okay, that was the first point. There were actually 2 points. Second point, yes, Nikhil, second point, or anyone else, I mean anyone does who know the second point. There were 2 considerations, let me tell you that. First of all, the type of relationship. If I'm performing this cross object field update action, let me take you back. If I'm performing the cross object field update action, the first consideration was both objects should be associated in master detail relationship. This was the first consideration. That means if the relationship type is lookup, then you cannot perform cross object field update action using workflow. ठीक है, पहली consideration. या पहला restriction. दूसरा restriction, by using the cross object field update action, you can what is the direction of the update? Direction was like this, okay, you can perform this operation from child to parent. That means your workflow should be fired on child and it will update a field inside the parent. This was the 2 consideration. You cannot make it to be fired on the parent and update the child object. No, this was not possible. Parent to child, not possible. Child to parent, possible, right? This was the 2 consideration when we perform cross object field update action using the workflows. Now let's come to the process builder. In the process builder also, yes, you can perform the cross object field update action. But see, process builder is far more powerful and advanced as compared. When we are performing the cross object field update action, first of all, you can initiate this operation for both type of relationship. You just don't need to bother about the relationship. If it is master detail, yes, you can perform cross object. Even if it is lookup relationship, you can even perform the cross object field update action. पहली बात. दूसरी बात, we can update the fields either from the child to parent and from parent to child. So in the both direction, you can update the field from child to parent, likewise in the workflow, yeah, and from parent to child also, both direction. And ये तो चलो हो गया कि रिलेशनशिप है, चाहे लुकअप है या मास्टर डिटेल है. जब रिलेशनशिप है तब कंसेप्ट आता है चाइल्ड और पेरेंट का, राइट? अब एक बहुत ही मजेदार बात, तीसरा पॉइंट, even if the objects are not related to each other, then also you can perform the update operation. See how much powerful the process builder is. भाई दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर रिलेशनशिप है, चाहे लुकअप है, चाहे मास्टर डिटेल है, आप क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन कर सकते हैं. आप फील्ड्स को अपडेट कर सकते हैं चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड. और सबसे मजेदार बात कि अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में रिलेटेड भी नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप, नीदर लुकअप नॉर मास्टर डिटेल, इवन यू कैन अपडेट इट. तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट्स का आपस में रिलेट होना कोई जरूरी, this is not at all essential that objects should be related to each other. ना कोई जरूरत नहीं. अगर रिलेटेड है तो अच्छी बात है,
रिलेशनशिप टाइप मास्टर डिटेल हो, लुकअप हो, चलेगा। अगर रिलेटेड नहीं है, इवन ऑल्सो यू कैन परफॉर्म। जैसे मान के चलिए कि मैं हायरिंग मैनेजर्स के थ्रू अकाउंट को कुछ अपडेट कर दूं, पोजीशन के थ्रू कॉन्टेक्ट को अपडेट कर दूं, ऑल्दो देयर इज नो सच रिलेशनशिप बिटवीन हायरिंग मैनेजर अकाउंट एंड पोजीशन एंड कॉन्टेक्ट, कोई रिलेशनशिप नहीं है, स्टिल आई कैन मेक द क्रॉस अपडेट फील्ड अपडेट एक्शन। व्हाई? प्रोसेस बिल्डर एडवांस है, प्रोसेस बिल्डर उतना ज्यादा पावरफुल है, समझिए इस चीज को। तो ऐसे ना ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी धीरे धीरे ना, जो आपको डिफरेंसेस में लिखनी है ऑफकोर्स। अब तीसरी एक बात ऐसी है कि यूजिंग द प्रोसेस बिल्डर इवन यू कैन कॉल वन अपेक्स क्लास। अपेक्स के कोड को भी आप कॉल कर सकते हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपको डेवलपमेंट तक खींच के लेके जाता है। प्रोसेस बिल्डर टेक यू द कस्टमाइजेशन पार्ट ऑल्सो। क्या होता है कि whenever we create a class, we actually create some of the methods inside the class. मैं समझाऊंगा आपको ये चीजें आगे चलते कि क्लास आर एक्सेसिबल विद द हेल्प ऑफ मेथड्स। क्लास क्या है, मेथड्स क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, सब पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। अभी बस एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी मेथड, ऐसी कोई भी मेथड, मेथड इज व्हाट, आप सिंपल लैंग्वेज में समझें, इट इज अ पीस ऑफ कोड, इट्स अ पीस ऑफ अपेक्स कोड, बस और कुछ नहीं। क्या है मेथड्स एग्जैक्टली, जब इसका वक्त आएगा तब डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप मेथड्स को समझिए कि आई हैव रिटन सम लाइंस ऑफ द कोड, दैट्स इट। सो व्हेनेवर आई रिटन एनी कोड, मैं जब भी ऐसा कोई कोड लिखता हूं जिसे कि मैं प्रोसेस बिल्डर के थ्रू कॉल करना चाहता हूं, तो उसे हमें इन्वोकेबल मेथड बनानी पड़ती है। कैसे बनाते हैं इन्वोकेबल मेथड, पढ़ लेंगे, जब इसका वक्त आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस आपको एक चीज याद रख, मतलब एक पॉइंट याद रख, यूजिंग द प्रोसेस बिल्डर वी कैन कॉल invocable methods, we can call the apex programs, we can call the apex methods। कौन सी मेथड्स? दोज हु आर इन्वोकेबल। वैसे सारी क्लासेस नहीं कॉल हो पाती, ठीक है, हाँ, लेकिन जिस किसी मेथड को आप इन्वोकेबल बनाओगे, कैसे बनाते हैं उसके लिए एक कीवर्ड यूज होता है, @इन्वोकेबल, आगे चल के पढ़ेंगे। तो आप ऐसा कोई भी क्लास, ऐसा कोई भी कोड आप कॉल कर सकते हो, आप किसी क्लास को या किसी मेथड को इन्वोकेबल बना लो, और आप जिसको भी आपने इन्वोकेबल मेथड बना दिया, आप उसे कॉल कर सकते हैं प्रोसेस बिल्डर के अंदर। और ये वर्कफ्लो से कभी भी पॉसिबल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वर्कफ्लो, मैं कह रहा हूं बार बार, वर्कफ्लो एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, और जिसके ऊपर सही मानों में सेल्सफोर्स ने अब काम करना बंद कर दिया है। अब सेल्सफोर्स जितने भी अपडेशंस कर रहा है वो सारे प्रोसेस बिल्डर के अंदर आपको मिलेंगे। आज मैं आपको 8 से 12 ऑपरेशन बताऊंगा, हो सकता है जब आप लाइव होंगे प्रोबेबली एक दो ऑप्शन ऐड हो चुके होंगे, कि अभी 3 महीने बाद तो एक नया रिलीज, अक्टूबर 9 को एक नया रिलीज आना होगा, हो सकता है इस रिलीज में या आने वाली कुछ रिलीज में कुछ नया आ जाए, तो आपको ये महसूस होगा कि यस, प्रोसेस बिल्डर को अपडेट किया जा रहा है, वर्कफ्लोज में अब कुछ नहीं है। लेकिन वर्कफ्लो को हटाया भी नहीं जा रहा है, क्योंकि क्या है कि काफी सारे सिस्टम ऐसे हैं आज भी, काफी सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं आज भी, जिनमें जिनमें यानी कि आपका प्रोसेस बिल्डर यूज होता है, तो ऐसी कुछ बातें हैं, सॉरी, वर्कफ्लो यूज होता है, राइट। तो हाँ, हम अपेक्स कॉल कर सकते हैं यूजिंग द प्रोसेस बिल्डर, चैटर्स के ऊपर कुछ पोस्ट कर सकते हैं प्रोसेस बिल्डर से, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है वर्कफ्लोज के साथ, जो कि अपेक्स कॉल करना भी पॉसिबल नहीं है। आप एक रिकॉर्ड को अप्रूवल के लिए भी प्रोसेस कर सकते हो, यूजिंग द प्रोसेस बिल्डर यू कैन सबमिट अ रिकॉर्ड फॉर द अप्रूवल। हियर आई वांट टू गिव यू वन असाइनमेंट, यहाँ पर मैं एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ आपको, वन असाइनमेंट आई वुड लाइक टू गिव। What is the approval process? Yeah, how to submit a record? What is the procedure to submit a record for approval in Salesforce? I want you to give this as a line. मैं चाहता हूं कि आप लोग अप्रूवल प्रोसेस पढ़ें, ठीक है, अपने से पढ़ें। So please go with this. What is the approval process? How to submit a record for the approval? ये पढ़ के रखिए। तो अगर आपको ये पता चल गया तो आप यूजिंग द प्रोसेस बिल्डर इसको कैसे करते हैं ये समझ सकते हैं, ठीक है।
तो ये मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, दिस आई एम गोइंग टू गिव यू इन द असाइनमेंट। आप अप्रूवल प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। Then you can add the quick actions. You can initiate a log, you can initiate a call, whatever. And even with a process builder, you can invoke another process builder. A process builder can call another process builder. Can we call a workflow with another workflow? Answer is no. No, we cannot do that. Workflow can, there is no concept of chaining of workflows. You cannot call a workflow within another work. Okay? There is no nesting of workflows. But yes, we can call a process builder into another process builder. Chaining of process builder is possible. Nesting of process builder is possible. We can call a process builder, we can call a process inside another process. Yes, we can do. और ऐसे बहुत सारे actions और हैं, आगे चल के अभी हम जब इस पे practically जाएंगे, then we are going to see. Okay, we are going to see this. ठीक है. Now I have written a few theory. मुझे कुछ अच्छा theory मिल गया था कहीं से, तो मैंने पोस्टर टू चैटर मतलब क्या होता है, सबमिट फॉर द अप्रूवल मतलब क्या होता है, अपडेटिंग अ रिकॉर्ड कैसे, क्विक एक्शन मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इलैबोरेट कर दी है, दिस इज फॉर यू गाइस, ठीक है। ये आपके लिए है कि आप इस नोट्स को जब आप डाउनलोड करें तो जरा सा ये थोड़ी सी जो थ्योरी है ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। दिस इज फॉर यू गाइस। और अगर मैं हर चीज पढ़ के सुनाऊंगा तो ज्यादा वक्त लग जाएगा, और ये मैं बताया कि इस तरह से समझाना मेरा काम, ये आपके लिए। आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, प्रोसेस बिल्डर को कैसे सेटअप करना, उसके लिए जाते हैं। नेविगेशन वही है जो आप वर्कफ्लोस के लिए लिया करते। यू नीड टू गो टू द सेटअप मेनू, गो टू द बिल्ड मेनू, गो टू द क्रिएट मेनू। क्रिएट मेनू के अंदर वर्कफ्लोज एंड अप्रूवल, ये जो प्रोसेस है इसके अंदर ही सब कुछ मिलेगा। वर्कफ्लोज भी यही मिलना है, प्रोसेस बिल्डर भी यही मिलना है, अप्रूवल भी यही मिलना है, ठीक है। सारे ऑप्शंस यही मिले। तो इसके पहले हम यहाँ से वर्कफ्लोज लेते थे, आज हम यहाँ से प्रोसेस बिल्डर, ठीक है। तो एक यूज केस ले लेते हैं और यूज केस के हिसाब से काम करते हैं। एक डिफरेंस और है जो आपको अभी पता चलने वाला है ड्यूरिंग द ईमेल नोटिफिकेशन। वैसे तो हमने ईमेल अलर्ट सेंड किए हैं वर्कफ्लोज के साथ, आज हम उसको प्रोसेस बिल्डर के साथ सेंड कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको समझने वाला है, ठीक है। क्रिएटिंग ऑफ द ईमेल अलर्ट ये पार्ट था प्रोसेस बिल्डर वर्कफ्लोज का, यहाँ पर ये अलग से होता है, कैसे समझेगा आप, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी। सो एक यूज केस लेते हैं कि कॉन्फ़िगर अ प्रोसेस टू सेंड ईमेल नोटिफिकेशन टू द कॉन्टैक्ट पर्सन अपॉन क्रिएटिंग अ न्यू कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड। बहुत बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहले लॉग इन कर लेते हैं, लॉग कस्टमर कमांड 05। अगर ये गैप नहीं होती एक हफ्ते की तो शायद आपका सिक्योरिटी स्टार्ट हो जाता था। ऐसा है कि घर में कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस आई कि बच्चे भी एक तरफ एडमिट और वाइफ दूसरी तरफ एडमिट। मैं काफी बिजी रहा लास्ट वीक। देखिए आपका यूज केस ये है कि अगर कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है ना, कैसे, तो ऑब्वियसली ये फॉर्म भरेंगे, हम सारी डिटेल्स भरेंगे और सेव का बटन दबाएंगे, तो मान के चलिए एक नया कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट हो। एज सून एज दिस कॉन्टैक्ट इज क्रिएटेड वी शुड सेंड वन ईमेल। किस पर? जो भी ईमेल आईडी उसके ऊपर, ठीक है। वी शुड सेंड वन ईमेल ऑन दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी। चलिए अब ईमेल आईडी पे ईमेल सेंड करना है तो ये इसके पहले हमने वर्कफ्लोज पे किया हुआ है, एंड वी आर अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ बिजनेस ऑटोमेशन। तो ये कोई हमारे लिए नया कंसेप्ट नहीं है, conceptually we are ready. Thing is that we have done this with the help of workflows. Now same process we require to understand this with the process builder कि how we actually achieve this in the process builder, बस और कुछ नहीं। तो एक बात बताइए कि अगर मैं ईमेल सेंड करना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मेरे पास एक टेम्पलेट होना चाहिए। ऑफ कोर्स व्हेनेवर वी सेंड द ईमेल वी शुड हैव अ टेम्पलेट, और इसीलिए हमने ईमेल टेम्पलेट्स भी पढ़ा था। तो एज एन स्टेप नंबर 1 सबसे पहले तो मुझे कम्युनिकेशन टेम्पलेट में और क्लासिक ईमेल टेम्पलेट में जाके ढूंढना चाहिए कि क्या मेरे पास ऐसा कोई टेम्पलेट है जिसमें कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट हो। मेरे ख्याल ऐसा कोई है नहीं मेरे पास। कैंडिडेट ऑब्जेक्ट, केस ऑब्जेक्ट, हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट, लीड पोजीशन और सैंपल तो खैर भी होगा। सो खैर हमारे पास ऐसा कोई टेम्पलेट है नहीं। सो एज अ स्टेप नंबर 1 ऑब्वियसली मुझे एक टेम्पलेट क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो चलते हैं कुछ स्टेप्स के ऊपर। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एज एन स्टेप नंबर 1
आपको एक ईमेल टेम्पलेट ही बनानी है जिसमें कि रिक्वायर्ड सब्जेक्ट और रिक्वायर्ड कंटेंट जो भी हो। सो ये स्टेप नंबर 1 जो है मेरी, इसमें कि सब्जेक्ट और कंटेंट दैट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, है ना, क्योंकि मेरे पास नहीं था इसलिए। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट, मेक इट टेक्स्ट ओनली, टेक्स्ट पर ही काम करते आ रहे हैं हम लोग, टेक्स्ट ही रखते हैं। टाइप ऑफ द ईमेल टेम्पलेट्स 4 तरह की होती हैं, ठीक है। अवेलेबल फॉर यूज बहुत जरूरी है। टेम्पलेट को नाम दीजिए, इट इज व्हाट न्यू कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएशन नोटिफिकेशन टेम्पलेट, ठीक है। Subject description, if you want, I can just copy and paste it over here, the same description. सब्जेक्ट से लेके ईमेल सारी चीजें मैंने पहले से निकाल रखी। कॉन्ग्रेचुलेशन, मर्ज फील्ड्स यूज किया है और आपको भली भांति पता है कि मर्ज फील्ड्स मतलब क्या होता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, द फर्स्ट नेम लास्ट नेम वट एवर एंड दिस इज द कंटेंट। इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, वहां पे कॉपी कर लेते हैं इसको एंड देन वी पेस्ट इट ओवर हियर। Here I require to manually some sort of formatting. थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आसान जाए, और ज्यादा तो कुछ दिख नहीं रहा है, कर लेते। इसके लिए अगर आप HTML यूज करेंगे तो आपको ये सब फॉर्मेटिंग नहीं करनी, बस HTML में स्पेसेस लाइंस ये सब टैग से हो जाता है। सो HTML एक तरीका है जिससे कि आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी है यहाँ पे, मैं छोड़ देता हूँ इन सब चीजों, और मैंने इसको सेव कर दिया। सो अब मेरे पास एक टेम्पलेट क्रिएटेड हो चुकी है और दैट इज अवेलेबल फॉर यूज। ये भी मैं देख सकता हूँ, इसका नाम है न्यू कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएशन नोटिफिकेशन टेम्पलेट। सो आई एम डन विद दिस स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जहां पे हमें एक ईमेल अलर्ट क्रिएट करना है। अब ये एक पार्ट जो था, ये एक्चुअली वर्क फ्लो में इनबिल्ट है और यहाँ पे ये एडिशनल स्टेप है। तो आप डिफरेंस के दौरान ये चीज लिखें, क्रिएटिंग ऑफ द ईमेल अलर्ट is a part of workflow. I mean, it's a built-in process. It's a built-in process inside the workflows. Whenever we set up the workflow and whenever we send this email, so creation of the email alert is actually an inbuilt process. But here inside the process builder, it's an additional step. Whenever we send this email with the help of process builder, we additionally required to create email alerts. अब ये एग्जैक्टली exactly क्या है, जब ये इंटरफेस पे आऊंगा तो आपको याद आ जाएगा, डोंट वरी। और आप ये डिफरेंशिएशन जो मैं बता रहा हूँ, इस पे आप एग्री हो जाएंगे कि हाँ, ये हमने देखा था वर्कफ्लोज में और इसको हमने कुछ अलग से स्टेप नहीं की थी। एक्चुअली हम फ्लो में आगे बहते जा रहे थे और हम एक पेज से दूसरे पेज पे बाउंस होते होते हम इस पेज पे ऑटोमेटिकली लैंड कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको अलग से जाना है। कैसे ईमेल अलर्ट क्रिएट करना है, तो वही है, सेटअप बिल्ड क्रिएट वर्कफ्लोज एंड अप्रूवल के अंदर ही सब कुछ मिलेगा आपको ईमेल अलर्ट। चलिए, लेट्स गो विद द स्टेप नंबर। गो टू द सेटअप मेनू, go to the build menu, go to the create menu. So expand the create menu. Inside the workflows and the approve, expand it. You have one option to create email alert. email alert, ठीक है। यहीं पर आपको वर्कफ्लोज भी मिल जाएगा, यहीं पे आपको प्रोसेस बिल्डर्स मिलेंगे, यहीं पर आपको फ्लोज मिलेंगे, यहीं पर आपको अप्रूवल प्रोसेस मिलेगा। ये आज का आपका असाइनमेंट है, इसके ऊपर आपने वर्कआउट करना है। और ये दोनों खत्म होने के बाद मैं फ्लोज आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ, ठीक है। 90 to 95% मैं पढ़ा दूंगा, कुछ चीजें आपसे अपेक्षित है कि आप इसको सॉल्व करें। सारी चीजें नहीं बताई जा सकती, स्कोप कम रहता है मेरे पास भी, ठीक है। सो ईमेल अलर्ट क्रिएट करने के लिए आप इस नेविगेशन को फॉलो करेंगे एंड देन क्लिक ऑन दिस ईमेल, कंटिन्यू, ठीक है।
I want to create a new email alert. ठीक है, description, new, contact creation, notification alert, unique name. अभी तक शायद आपको महसूस नहीं हुआ कि ये मैंने इसके पहले देखा है. आ जाएगा डोंट वरी. कौन सी ऑब्जेक्ट है? कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट है. कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट. ईमेल टेम्पलेट कौन सी? पहले ईमेल टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाती थी जब हम वर्क फ्लोज पे थे, लेकिन अब नहीं है. किस फोल्डर में है? अलाइन ईमेल टेम्पलेट में है. न्यू कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएशन नोटिफिकेशन टेम्पलेट, ये वाली टेम्पलेट जो अभी अभी क्रिएट की गई है, सिलेक्ट कर. अब यहां से शायद आपको याद आना शुरू हो जाए, मैं कहता था कि यहां से आपको ईमेल फील्ड ही सिलेक्ट करनी है. इसको लीजिए, इसको सेट करिए और मुझे 5 ईमेल आईडी दीजिए. मेरे ख्याल आप सबको याद आ गया. 5 ईमेल आईडी दीजिए जिनको ये सीसी में जाना चाहिए. दीजिए 5 ईमेल आईडी दीजिए मुझे. हम्म? तो ये जो अब आपके सामने आया, आई थिंक अब आपको याद आ चुका होगा. यहाँ पे मैं आपको 5 ईमेल आईडी मांगता था. लाइए 5 ईमेल आईडी दीजिए मुझे. टाइप करिए, भेजिए. काफी समय लगा रहे हैं आप. बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच. हो गया, बस करो बस करो. आप कोई मत भेजो. श्वेता पांडे. इसके बाद में है आमिरा अर्शिन. आमिरा और अर्शिन के बीच में कॉमा क्यों है? सर वो डॉट है. रॉन्ग ईमेल आईडी, नॉट अलाउड. स्वीटी एंड निखिल एंड निखिल. अरे हमारे पास 2 निखिल है, मुझे पता ही नहीं इस बारे में, आज पता चला. ठीक है. सो चलो, दीज आर द 5 ईमेल आईडीज. इनको भी सीसी जाएंगे. तो अब आप याद करिए, ये जो पेज पे मैं लैंड किया, अलर्ट वाले पेज पे, ईमेल अलर्ट वाले, इसमें आप वर्क फ्लोज में ना कंटिन्यूटी में आते थे. और वो जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते थे बाउंस होके, तब आप इस पे आ जाते थे. ठीक है. लेकिन यहाँ पे ये एक एडिशनल स्टेप है. जब आप ईमेल टेम्पलेट बनाते हैं तो एक एडिशनल, एज एन एडिशनल स्टेप, you also need to create the alerts. ठीक है. and this was actually a built-in process inside the workflows. यहाँ पे नहीं. ठीक है. चलिए, so let me just save it. ये मैं सेव कर लिया. so I created one email alert also. तो एक as an step number 2, step number 1 was to create the email template. Created. Point number 1 completed. Point number 2 is also completed. ठीक है. step number 1 is completed. आपने एक email template बना लिया. स्टेप नंबर 2, ईमेल अलर्ट बनाना था, वो भी बना लिया. नाउ इज टू गो विद द प्रोसेस बिल्डर. ठीक है. नाउ वी आर कंस्ट्रक्टिंग द प्रोसेस बिल्डर. चलिए 1 सेकेंड. तो प्रोसेस बिल्डर बनाना है. सेम नेविगेशन, सेम. गो टू द सेटअप, गो टू द बिल्ड. Inside the create menu, you have workflows and approval. Inside the workflows and approval, you have process builder. I do one thing. मैं एक चीज करता हूँ. Let me open this into a separate tab. बिकॉज ये पेज का मुझे थोड़ा सा काम है जो मुझे आपको सिखाना है, तो मैं इसको एक अलग टैब में ले लेता हूँ. कंट्रोल के साथ मैं क्लिक करूंगा, अलग टैब में जाता है. देखिए, दिस इज द प्रोसेस. सो हाउ डज दिस लुक्स लाइक? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसा दिख रहा है? ठीक है. दिस इंटरफेस, हाउ डज इट लुक्स लाइक? आप सब एक एक चीज पे गौर करें. दिस इज द होम पेज. दिस इज द होम पेज. ठीक है. क्लिक ऑन न्यू. क्लिक ऑन न्यू. गिव द नेम ऑफ एनी प्रोसेस. तो आप गौर करिए, हम यहाँ पे कैसे नाम देते हैं. वी यूज टू राइट डाउन लाइक दिस. न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएशन नोटिफिकेशन. अगर ये वर्कफ्लो होता तो मैं देता था रूल. ठीक है. वर्कफ्लो रूल, तो मैं रूल लिखता था. ये मेरा नेमिंग कन्वेंशन है, आप अपना ले सकते हैं. टेम्पलेट के लिए मैं टेम्पलेट लिखता हूँ, अलर्ट के लिए अलर्ट लिखता हूँ. यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएशन नोटिफिकेशन प्रोसेस. क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस बिल्डर है. टैप करिए, एपीआई नेम अपने आप क्रिएट हो जाता है. डिस्क्रिप्शन, यू वांट टू राइट डिस्क्रिप्शन, वही सेम चीज, जस्ट कॉपी पेस्ट इट ओवर. अब the process starts when there are 3 options over here. When the record changes, when the platform event message is received, when it is invoked by the another process. ये 3 चीजों में से
आपको वैसे तो हमेशा रिकॉर्ड चेंज पे जाना है, लेकिन मैं आपको ये दोनों ऑप्शंस भी बता देता हूँ। एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। इसके बाद इस पर डिस्कशन नहीं होगा, तो इसे बहुत ध्यान से सुनिए और इसे नोट करके रख लें अपने पास, ठीक है। सी, सेकेंड ऑप्शन, a platform event message is received. Can anyone tell me what is Salesforce Einstein? Yes, can anyone tell me what is Salesforce Einstein? Salesforce Einstein क्या है और टेक्नोलॉजी के किस सेगमेंट में काम करता है? यस, सेल्सफोर्स आइंस्टीन क्या है, टेक्नोलॉजी के किस सेगमेंट में काम करता है? No idea, sir. अच्छा, मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया ये बताओ। अब बताइए, सेल्सफोर्स आइंस्टीन किसमें डील करता है? दिस इज द ब्रांच ऑफ सेल्सफोर्स which actually deals with the artificial intelligence, IoT, robotics, right? So if you want to work on these branches of the computer science with the help of Salesforce, you can do with the Salesforce Einstein. बहुत ज्यादा डिमांड में है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोई है नहीं आइंस्टीन को अच्छे से पढ़ाने वाला। तो शायद हैदराबाद या बैंगलोर में कुछ इंस्टीट्यूट हैं, बट आइंस्टीन पे जिस तरह से प्रिपेयर करना है अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोई है नहीं। इंडिया में आइंस्टीन के ऊपर कम ही प्रोजेक्ट है, बट यस इट इज डिमांडेड, बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी। तो वेन एवर वी डील विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, रोबोटिक्स, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट पे अगर आप आइंस्टीन पे काम कर रहे हो, तो क्या होता है कि व्हाट इज द IoT? इफ आई आस्क यू व्हाट इज द IoT फुल फॉर्म, शायद सभी को पता होगा क्या होता है IoT। व्हाट इज IoT? इंटरनेट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिल्कुल सही बताया, ठीक है। सो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन, 2 मिनट का, ज्यादा नहीं, ठीक है। देखिए, whenever the devices actually exchange messages with the devices, internet of things matlab it's a kind of internet, it's a kind of network where actually device used to interact with another device. Sensors used to give some messages to another devices, and based on that it takes the decision, and there is no human being involved in the entire process, right? This is something called as internet of things. What we are using, this is the internet of human beings. ये हमारा internet है. And the same way, they have developed this technology where their device actually used to communicate with another device. So there, when the message has been received, that message is called as platform message, event message. So if a message has been received from another device, and if I want to take a certain process, I want to initiate a certain process, I should go with this option. So this option is generally used in the Salesforce Einstein projects, okay? When the device is used to give some another kind of messages, that is what. And third, I have already told you, okay, inside the process builder, we got this facility that a process builder can call another process. Workflow cannot call another workflow, but yes, process builder can call another process. So these two are out of scope of your training, because you won't get any example where process is going to call another process, and you won't get any example where I could tell you how this platform messages are actually generated. Yes, but you should have an idea what is this option is used for and what is this option is used for, right? And this is what I'm giving you. I'm just giving you this as an idea. If you want to learn more about this, you can definitely Google and find it out, what is the use of this and what is the use of this. And for the sake of your use cases, whatever the use cases you are going to work, you always will have it whenever record changes. This is a universal for everything. It doesn't mean created by updated. No, 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 no. This is for everything else. Apart from this too, whatever everything we are going to design, it's a universal criteria for everything to do something with the process builder. Whatever the operation you want to do with the process builder, every operation comes under the record changes, okay? So har bar, whenever we work on the process builder, whenever we want to design an automation process with the process builder, we will select this as a criteria, a record changes, okay? Save it. And see this, how does it looks like? Abhi aap dekho. This is your probably the next 4 to 5 wala difference wala point.
Process builder looks like a graphical user interface. It looks like a flow chart. How does your workflows look like? Workflows कैसे दिखता है? How does your workflows look? Workflows look like this. You set up a workflow. You set up a workflow. It will take you from one page to another page. This is one page. You set up something on the first page. You click the next. You go to the second page. Do something on the second page. Just click next and go to the third page. So this is how does the workflows look, and this is how a process builder. Here there are number of navigations. Here there are number of branching from one page to another page. Here it is not. The entire process is set up on a single canvas. Whatever you want, everything is available on the single canvas. There is no branching at all. There's no branching, and this is another difference between the workflows and the process builder. Process is a kind of user interface where actually things we need to set up. It's just like a form. You write something in the first page, then you go to the second page, you go to the third page, and this is how you set up a workflow. But the process builder is whatever you want to set up, you will set up it in the same page. There's only one canvas, and moreover it's a graphical user interface. This is not this is not a graphical user interface. It's a kind of form. It's like a form. Yes, Shweta, it's time consuming. Here it is not time consuming. That is also one of the point. Okay, time consuming बोल सकते हो मुझे कोई दिक्कत. So let's set up this start and stop. This is how every workflows, every what is this क्या word लिया मैंने इसके लिए? I just forgot फ्लो it. चार्ट है Flow chart. Yes, thank you, Amira. यानी flow chart, वो word ही भूल गया था मैं एकदम से. So this is how every flow chart looks like. Start और end के बीच में सब कुछ रहता है. So add object सबसे पहले. हाँ, अब बताओ मुझे use case के accordingly. Is your 105. Use case के accordingly, I want to work on which object? We want to work on the contact object. So select the object first. Add object. As soon as you click, यहाँ पर एक interface बन के तैयार होगा. On the same page, everything. Find the object. Although you can find it like this. यहाँ से भी आप scroll करके इस तरह से ले सकते हो. ऐसे भी. These are the all objects. सारी standard object, सारी custom object. सारी अवेलेबल है यहाँ. ठीक है. एक तो ये तरीका है. दूसरा थोड़ा सा टाइप कर दो आप. थोड़ा सा टाइप कर दो तो आपको मिल जाता है. ठीक है. हाँ. What do you want? Only the record is created or created and every time it is edited. देखो वो दोनों चीजें करीब करीब सेम है क्राइटेरिया के हिसाब से. तो I just want to whenever क्या था यूज केस क्या था. हाँ, ईमेल फायर करना है. ओके, ईमेल फायर करना. तो भाई when it is created only upon creating लिखा हुआ है. So obviously मुझे created पर ही जाना है. I don't want to be created and every time it is updated. ठीक है. तो select this as a process. Start the process when? Only when the record is created. Save it. देखो अब यहाँ पे कलर चेंज हो गया. योर ऑब्जेक्ट हैज बीन एडेड. सी हाउ सिंपल इज दिस. और फ्लोज भी ऐसा ही है. ठीक है. फ्लोज आपको मैं देने वाला हूँ एज अ होमवर्क, बट फ्लो भी ऐसा ही है. सिंपल है वो भी. चलो उसके बाद में अब क्राइटेरिया ऐड करो. क्राइटेरिया ऐड करो. ठीक है. नाउ आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन ओवर हियर. एडिंग द क्राइटेरिया इनसाइड दिस वर्कफ्लो वाज एसेंशियल. व्हाई? हमने डिस्कस किया इसका काफी बार. मैंने स्ट्रेस देके बोला था कि एटलीस्ट एक क्राइटेरिया तो भी ऐड करना पड़ता है. ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया चलेगा, बट एटलीस्ट एक क्राइटेरिया तो भी ऐड करना पड़ता है. विदाउट अ क्राइटेरिया यू कैन नॉट. विदाउट अ रूल क्राइटेरिया यू कैन नॉट सेट अप द वर्क. ठीक है. देखिए बहुत सारे डिफरेंसेस मैं बताता चला जा रहा हूँ और आई होप यू आर एक्चुअली नोट तो भी कर रहे हैं. बाद में हो सकता है आप इसको सही तरीके से लिख लेंगे, बट अभी एटलीस्ट आप नोट तो भी कर रहे हैं. इतना मैं एज्यूम करता हूँ. कैसा कि 1-to-1 ही चल रहा है. आप मुझको नहीं देख रहे, मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, चाहे क्लास में कितने भी लोग बैठे हैं. मैं एक स्क्रीन, आप एक स्क्रीन, इससे ज्यादा क्या है. ठीक है. So this is selecting the at least one rule criteria was essentially important है ना. उसके विदाउट आप वर्कफ्लो क्रिएट नहीं कर सकते. राइट. अब चलो इसी चीज को प्रोसेस बिल्डर में आते हैं. क्राइटेरिया सिलेक्ट करो. क्राइटेरिया सिलेक्ट करो. ओके. When the conditions are met, formulas, no criteria. So you can even criteria का नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, but without setting up a criteria, even you can fire the process builder. No criteria, just execute the action. ये फैसिलिटी वहां नहीं है और ये आपका डिफरेंस का पॉइंट है. ये आपका डिफरेंस का पॉइंट है. ठीक है. फिलहाल मुझे क्राइटेरिया चेक करना है, इसलिए मैं कंडीशंस आर मेट पे जाता हूं और मैं क्राइटेरिया को एक नाम दे देता हूं. ईमेल फायर करना है ना, तो फिर ईमेल फायर करना है तो फिर चेक फॉर द
ईमेल फील्ड है ना, चेक फॉर द ईमेल फील्ड। अपने मन से जैसे ईमेल फाइल करना, इसलिए मैं ईमेल की फील्ड चेक करूँ कि कहीं ईमेल की फील्ड ब्लैंक तो नहीं है। तो इसके लिए मैं फाइंड अ फील्ड पे जाता हूँ, तो कुछ देखो, कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आप सब आइकन पे क्लिक करो। कौन सी फील्ड चाहिए आप चाहो तो ऐसे यहाँ से भी ड्रॉप डाउन से ले सकते हो ना, सारी फील्ड डिस्प्ले होंगी यहाँ पे, सारी डिस्प्ले हो जाएगी। और दूसरा तरीका वही है कि आप ऐसा ईमेल टाइप करके देखो कुछ आता है क्या। ईमेल कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट की ईमेल फील्ड, कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट की ईमेल फील्ड सिलेक्ट कर लो। तो फील्ड्स यानी कौन सी आ गई, कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट की डॉट ईमेल फील्ड आ गई। क्या चाहते हैं आप, इक्वल्स टू नहीं, मुझे डज नॉट इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल्स टू व्हाट। तो आप थोड़ा सा ऑप्शंस को समझो, फील्ड रेफरेंस यानी कोई और फील्ड, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू या कोई फॉर्मूला, या ग्लोबल कांस्टेंट। मैंने ग्लोबल कांस्टेंट सिलेक्ट किया है। आई डोंट वांट दिस फील्ड टू बी नल, आई डोंट वांट दिस फील्ड टू बी ब्लैंक, है ना, ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ ईमेल आईडी होना चाहिए, कुछ ना कुछ ईमेल होना चाहिए, वरना ये प्रोसेस फायर तो होगा लेकिन ईमेल कहाँ जाएगा। तो वही अवॉइड करना है अपने को। तो ग्लोबल कांस्टेंट लेंगे आप यहाँ से, ठीक है, क्या लेंगे, ग्लोबल कांस्टेंट। दो तीन एग्जांपल में सब समझ में आ जाएगा, कहाँ पे फील्ड स्ट्रिंग लेना, फील्ड रेफरेंस कहाँ लेना, ग्लोबल कांस्टेंट कहाँ लेना। Select one. What you want? Empty string? No, I don't want it to be null. I don't want this field to be null. I want there must be some value over there. And so I have selected this option, global constant null. I don't want this field. Does not equals to null. Email does not equals to null. This is what my condition. कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, save it. Condition add हो गई, object add हुआ, condition add हुआ. Now see, if condition is true, go with this action. If condition is false, वर्कफ्लो में क्या होता था बताओ, if condition is false what happen, if this rule doesn't satisfy what happen, yes condition is false what happen, just tell me one thing, workflow will fire or not fire, Not fire, sir. not fire। Not fire. कोई दूसरा ऑप्शन, कोई वर्क अराउंड, कोई आजू बाजू का रास्ता, कोई शॉर्टकट, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। if the condition satisfy, workflow will fire, if the condition won't satisfy, workflow will stop, it will do nothing। ठीक है, कोई स्कोप नहीं है, कोई इसके आगे बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है, कोई भी स्कोप नहीं है। प्रोसेस बिल्डर में देखिए आप, अगर देखो पहला एग्जांपल है इसलिए मैं काफी कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, और ये जरूरी भी है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं कि ईमेल कैसे फायर हो, आप जानते हो, आप जानते हो ईमेल अलर्ट क्या होता है, ईमेल में टेम्पलेट का क्या इंपॉर्टेंट, सब कुछ जानते हो। इंपॉर्टेंट है इसको समझना जो मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। कंडीशन ट्रू हुई, ये एक्शन फायर हो। कंडीशन अगर फॉल्स हुई, आप कोई और क्राइटेरिया दीजिए, उसके हिसाब से ये एक्शन फायर हो। अब ये चीज वहां नहीं है वर्कफ्लो में, यू कैन ओनली इमेजिन अबाउट वन एक्शन, एक ही एक्शन हो सकता है, इमीडिएट टाइम डिपेंडेंट मत जाओ। कहने का मतलब है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हुई एक्शन होगा, फॉल्स हुई स्टॉप हो जाएगा, ये वर्कफ्लो है, ये है वर्कफ्लो। कंडीशन ट्रू एक्शन, कंडीशन फॉल्स स्टॉप, डू नथिंग, कुछ भी नहीं करेगा। प्रोसेस बिल्डर ऐसा नहीं है। प्रोसेस बिल्डर कैसा है, कंडीशन ट्रू हुई तो भैया ये कंडीशन, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर लेंगे, ये वाली एक्शन। कंडीशन फॉल्स हुई तो कोई दूसरी एक्शन करें, फिर फॉल्स हुआ तीसरा एक्शन, फिर फॉल्स हुआ चौथा एक्शन, दिस इज दिस कोर्स। तो यहां कोई जरूरी नहीं है कि एक ही कंडीशन हो और एक ही एक्शन, नहीं, ये कंडीशन पे ये एक्शन, ये फॉल्स हुई तो दूसरी कंडीशन पे दूसरा एक्शन, ये फॉल्स हुआ तीसरी कंडीशन पे तीसरा एक्शन। तो आप सोचो कि आप इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड मॉड्यूल को कितना सिंपली प्लान कर सकते हैं यहाँ से। हर वो चीज जिसके लिए ट्रिगर लिखते हैं, लेट मी टेल यू दैट, हर वो चीज जिसके लिए ट्रिगर लिखते हैं, सारी चीजें प्रोसेस बिल्डर से प्रोसेस होती है एग्जीक्यूट अप टू सम एक्सटेंट, अप टू सम एक्सटेंट। जो कुछ भी आप ट्रिगर से करोगे आगे चल के, वो सारी प्रोसेस बिल्डर से की जाती है, बशर्ते आपके पास में उतना दिमाग हो ऑटोमेशन वाला, दिमाग हो उतना ऑटोमेशन वाला, ठीक है। ये एक फायदा है प्रोसेस बिल्डर, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक क्यों ना हो, आप प्रोसेस बिल्डर से डिजाइन कर सकते हो। ये कंडीशन हुआ ये काम करेंगे, ये फॉल्स हुआ दूसरी कंडीशन चेक करके दूसरा काम करेंगे, वो फॉल्स हुआ तीसरी कंडीशन देख के तीसरा काम करेंगे, एंड दिस गोस ऑन। ये लंबी चेन है, बहुत लंबी चेन है, ठीक है। आप इसको इतना इस हद तक बना सकते, देखिए ये चीज नहीं थी वर्कफ्लो के पास, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस का पॉइंट है, इसको भी नोट करें। तो हमारा तो बड़ा सिंपल सा काम है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो एक्शन देंगे, वरना सीधा जाके स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो आप सिंपल काम कर रहे हैं, मैं यहाँ कुछ नहीं आता हूँ, वरना एक क्राइटेरिया यहाँ पे ऐड किया जा सकता था, ठीक है। अब फिर से इमीडिएट एक्शन और टाइम डिपेंडेंट एक्शन का नाम यहाँ पे शेड्यूल्ड एक्शन है, बस इतना सा फर्क है, प्रॉपर्टी सेम है। शेड्यूल्ड एक्शन
या टाइम डिपेंडेंट एक्शन पे क्रिएटेड एंड अपडेटेड वाला क्राइटेरिया यहाँ पर भी नहीं लगता है। तो अगर कोई चीज कॉमन है, कुछ बातें कॉमन भी है दोनों के बीच, तो उसमें से एक जो आपने पढ़ा कि योर टाइम डिपेंडेंट एक्शंस कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट इज अपडेटेड, 3 क्राइटेरिया थे वहां पे वर्कफ्लोज पे। मॉक में लोगों को ये भी बताने नहीं आते, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, हैरान होता हूँ मैं जब मॉक लेता हूँ। लेकिन ठीक है, मेरा बस यही कहना है कि चलो मेरे सामने आप शर्मिंदा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे सामने आपकी गलतियां निकल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर कोई नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा है। इंटरव्यू में आपके साथ ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 क्राइटेरिया होते हैं, क्रिएटेड, क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट इज अपडेटेड। तीसरा भी यही है, क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट इज अपडेटेड या एनी टाइम इट इज अपडेटेड, मीटिंग द सब्सिक्वेंट क्राइटेरिया। इतना ही तो बोलना पड़ता है, और क्या बोलना, नहीं बोल पाते, पता नहीं क्या छोड़। उसमें से जो सेकंड नंबर का क्राइटेरिया है कि आपके जो इमीडिएट एक्शंस होते हैं वो तो सब पे लग सकते हैं, टाइम डिपेंडेंट एक्शंस सेकंड क्राइटेरिया क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट इज अपडेटेड पे नहीं लगता। यहां पर भी सेम चीज है, अगर आप अपडेट पे जाते, इसके पहले मैंने जब चेक फॉर द क्राइटेरिया पे अपडेटेड नहीं लिया, क्रिएटेड लिया, अगर मैं अपडेटेड लेता तो ये पूरा बॉक्स यहाँ से गायब हो जाता था, और ये नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख लोगे, अगले एग्जांपल में जब कल वगैरह सॉल्व करेंगे तो ये चीज आप देख लो। शेड्यूल्ड एक्शंस सेकंड क्राइटेरिया पे नहीं लगते, जहां पर भी क्रिएटेड एंड अपडेटेड वाला पार्ट आता है, इंसर्टेड एंड एडिटेड वाला पार्ट आता है, वहां पे शेड्यूल्ड एक्शन नहीं लगते हैं, प्रोसेस बिल्डर में भी नहीं लगते। ये चीज दोनों में कॉमन है। सो मुझे फिलहाल इमीडिएट एक्शन की ही जरूरत है, तो इमीडिएट एक्शन का एक अलग बॉक्स है, शेड्यूल्ड एक्शन का एक अलग बॉक्स है। ठीक है, तो ऐड एक्शन, इमीडिएट में चलते हैं ऐड एक्शन। अब देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एक्शंस हैं। यू कैन कॉल एन अपेक्स, यू कैन क्रिएट अ रिकॉर्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने वहां 8 लिखे थे, यहाँ पे ज्यादा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो दीज मेनी नंबर ऑफ द एक्शंस दैट यू कैन परफॉर्म विद द प्रोसेस बिल्डर। और हो सकता है जब तक आप तैयार हो, आप लाइव हो, कुछ एक दो ऑप्शंस यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जब अपनी ट्रेनिंग की थी तब शायद 7 या 8 ऑप्शन थे, अभी ऑलमोस्ट 11 हो गए, आने वाले वक्त में और बढ़ सकते हैं। सो अभी जो मेरा टास्क है उसके हिसाब से मुझे ईमेल अलर्ट भेजना है, सो मैं ईमेल अलर्ट को सिलेक्ट कर लें। एक्शन को कोई नाम देना जरूरी होता है, दे सकते हैं कोई भी नाम, सेंडिंग दी ईमेल अलर्ट, कॉन्टैक्ट पर्सन, ठीक है, ये एक्शन का नाम है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ईमेल अलर्ट का नाम लिखना है। अब यहाँ थोड़ी सी ना मैं टेक्निक सिखाऊंगा आपको, इसीलिए मैंने ये वाला पेज ओपन रखा था, तो मैं आगे जाके बैक आया था, ये इस वजह से। ठीक है, क्या है ये जो यूनिक नेम है ना इसका, अलर्ट का, इसको जरा सा कॉपी कर ले, कॉपी, इसको यहाँ पे पेस्ट करना, हालांकि आप टाइप करो तो ठीक है, जैसे आप इसको पेस्ट करते हैं ये देखो नीचे में पूरा नाम लिख के आ जाता है। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर, ये थोड़ा सा टेक्निक है, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट हैंड नॉलेज जिसको बोलते हैं, कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो चीजें समझ में आती है वो मैं आपको शेयर किया यहाँ पे। अगर आप ऐसा नहीं करें तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है लोगों को यहाँ पे ईमेल अलर्ट लाने में। सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि जो भी ईमेल अलर्ट लाना है उसका यूनिक नेम कॉपी कर लीजिए, यहाँ लाके पेस्ट कर दीजिए, अपने आप वो नाम नीचे आ जाता है, सिलेक्ट कर लीजिए, बस। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये तरीके से जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सेव करिए, हो गया, तैयार, बस खत्म। और कोई एक्शन ऐड करनी तो और ऐड करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए। क्या किया आपने, स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट ऐड किया, क्राइटेरिया दिया, क्राइटेरिया को नाम देना जरूरी है, क्राइटेरिया देना जरूरी है, क्राइटेरिया ब्लैंक भी हो सकता है, एक्शन ऐड किया, स्केड्यूल्ड है तो स्केड्यूल्ड, इमीडिएट है तो इमीडिएट, सेंडिंग द ईमेल अलर्ट, और कुछ है तो कर लो, नहीं है तो कुछ नहीं, नहीं है तो बस हो गया, खत्म, दैट्स इट। इसके बाद में एक्टिवेट करना है आपको, जैसे आप वर्कफ्लोज में करते थे, वर्कफ्लो में सेव करने के बाद एक्टिवेट करते थे, या दोनों चीजें एक साथ ही हो जाएंगी, आप बस एक्टिवेट कर दीजिए, कंफर्म, हो गया एक्टिवेट, बस दैट्स इट, ये सेव भी हो गया, डीएक्टिवेट। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ जाइए, व्यू ऑल प्रोसेस पे जाइए, तो आपकी जो जो प्रोसेस आपने बनाई है वो बन के तैयार है, न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएशन नोटिफिकेशन प्रोसेस, कौन सी ऑब्जेक्ट पर है, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट। कब एक्टिवेट होगी ये, जब कोई रिकॉर्ड चेंज होगा, मैंने एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे आपका, स्टेटस क्या है, एक्टिव है। ठीक है, तो अब मैं एक कॉन्टैक्ट पे एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ और देखता हूँ कि ईमेल आते हैं या नहीं आते हैं, बिल्कुल वही है प्रोसेस जो भी है। न्यू, फर्स्ट नेम इज टेस्ट,
टेक्स्ट कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड वाया प्रोसेस बिल्डर। ठीक है, आप चलो कुछ डिटेल्स दे देते हैं। ईमेल, यहाँ पे ईमेल देना चाहिए SFDC@gmail.com। बस ठीक है, इतनी डिटेल्स काफी हैं। विद ऑल दीज डिटेल्स मैं मेल भेज देता हूँ। अब जब मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है और हमारी प्रोसेस जो है वो क्रिएशन पे लगी है। तो जैसे कि कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा तो प्रोसेस पीछे में फायर होगा, है ना। प्रोसेस फायर होगा तो एक ईमेल भी आना चाहिए। सो लेट्स एक्सपेक्ट वन ईमेल टू बी डिलीवर्ड ऑन दिस ईमेल। और वो 5 लोग जिनका ये देखिए आ गया है आप, और ये सारे 5 लोग जो जिन्होंने ईमेल आईडी मुझको शेयर की थी उन सबको भी आ गया। ये बस वही चीज है जो आपने देखा, टेस्ट कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड वाया प्रोसेस बिल्डर इज द नेम एंड देन एंटायर थिंग। ये रिकॉर्ड आईडी है, इससे क्रिएट हुआ है आपका। 003 स्टैंड्स फॉर द कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट, 003 स्टैंड्स फॉर द कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट। दिस ऑल डिटेल्स, दैट्स इट। सेम चीज इसके पहले आप देख चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट था प्रोसेस बिल्डर को समझना, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू यूज द प्रोसेस बिल्डर। अब आई थिंक कुछ एग्जांपल हैं, असाइनमेंट है आपके लिए, 2 असाइनमेंट है। ईमेल नोटिफिकेशन कैंडिडेट रिकॉर्ड क्रिएशन पर, submitting the candidate to the specific position. Email notification on creating a new case with the high priority. यहाँ पे मैंने एक कंडीशन इम्पोज की है, न्यू केस इंसर्शन, लेकिन वो जिसकी हाई प्रायोरिटी। अगर केस की प्रायोरिटी हाई है तो ही ईमेल भेजें, वरना नहीं भेजें, ठीक है। यू नीड टू चेक इट आउट। और ऑब्वियसली आप जो भी बना रहे हैं आप मुझे भेजेंगे ताकि मैं देख पाऊँ आप सही कर रहे हो या नहीं। तो जो भी असाइनमेंट करेगा वो इस ईमेल आईडी पे मुझे असाइनमेंट दे देगा, kasim.14 पर, ठीक है। चलिए स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग, आज इतना ही पढ़।